Next method for goodwill brought by the new partner. अभी तक हम लोग डिस्कशन किया है that goodwill can be brought by the new partner in cash or privately. So privately there is no entry, and for cash we have done the portions. Now another way is that if he do not want to brought the amount of goodwill, that is premium, in cash, so what other options are available? Other options are the new partner. The new partner have the he can come with the amount of premium in kind. अब यहाँ पे what is the meaning of kind? Kind क्या है? Kind means he is not come with cash or bank balance. He is paying the amount of goodwill or the amount of capital. दोनों चीजें कर सकता है वो अपनी गुडविल का पैसा या अपनी कैपिटल का पैसा कैश में पे ना करके या फिर आप कह सकते हैं बैंक बैलेंस के थ्रू पे ना करके he is paying through the various assets. He is paying through the various assets. उसके पास ऑलरेडी कुछ assets है. That assets can be useful for our business also. So he is requesting कि instead of taking the cash, we request the assets of the new partner. मान लीजिए न्यू पार्टनर के पास कोई मशीनरी है, न्यू पार्टनर के पास कोई लैंड है, न्यू पार्टनर के पास कोई फैक्ट्री है, या न्यू पार्टनर के पास कोई कंप्यूटर पड़ा हुआ है. he is having some livestock that may be useful for my business, जो हमारे बिजनेस के लिए यूजफुल हो सकता है. so we can accept in against of the payment of premium or capital. तो प्रीमियम या कैपिटल के पेमेंट के अगेंस्ट में हम वो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं. because ultimately after brought in cash in the organization, उस कैश से भी हम क्या करेंगे, बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड एसेट्स खरीदेंगे. ठीक है, डायरेक्टली we can accept the assets of fine. So if any of the partner is brought up the amount of goodwill or premium in kinds, that is through various assets, so how we will write the entry? The entry will be sundry assets account debit. Sundry assets means various assets account debit to premium for goodwill. Sundry assets account debit to premium for goodwill. और सपोज वो कैपिटल भी अपनी काइंड से ही पे कर रहा है, कैपिटल भी कैश में नहीं ला रहा है, तो इसी एंट्री की जगह हम ये एंट्री करेंगे, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम के लिए तो प्रीमियम ही यूज करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. और इफ ही इज पेइंग हिज कैपिटल आल्सो थ्रू दिस असेट्स, तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग न्यू पार्टनर्स capital account. For example, new partner is coming with 1,20,000 of asset. वो 1,20,000 रुपये का सेट ला रहा है, उसका पोर्शन ऑफ प्रीमियम है फर्म के लिए ओनली 20,000, बट ही इज पेइंग 120 ना थ्रू असेट्स. तो 1 लाख वो किसके लिए पे कर रहा है, अपनी कैपिटल. तो हम क्या करेंगे, सन्ड्री असेट ही वाली एंट्री करेंगे, 1,20,000 यहाँ आ जाएगा, 20,000 is his premium share and remaining is his capital. Fine. और फिर उसके बाद the same entry क्या होगा इनका, ये जो प्रीमियम लाया है, this premium will be retained in the business by the sacrificing partner. तो जब sacrificing partners को डिस्ट्रीब्यूट होगी तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट to sacrificing partner capital account, same as previous one. जैसे पुरानी एंट्री हुई थी वैसे ही करनी है, कोई चेंज नहीं है इसमें. ओनली चेंज पार्ट इज कि वी हैव राइट डाउन सन्ड्री असेट्स इंस्टेड ऑफ कैश. हमने कैश की जगह पे सन्ड्री असेट लिख दिया है, अदरवाइज देयर इज नो चेंज इन द एंटायर प्रोसेस. द प्रोसेस विल रिमेन सेम. फाइन. numerical question number 30 we are discussing. Ram and Mohan are the partner.
and they are sharing profit in the ratio of 3:2. They admit a new partner, Sohan, for 1/4 share in the profit, and Sohan contributes some asset towards his capital and his share of goodwill. सोहन जो है वो कैश की जगह क्या ला रहा है, कुछ असेट्स ला रहा है, ठीक है. एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज 6 लाख. फर्म की गुडविल दे रखी है बेटा आपको, फर्म्स गुडविल इज 6 lakh. So what will be the share of Sohan? Sohan share in goodwill 6 lakh multiplied by 1/4. That is 1,50,000. Means Sohan को अपने शेयर की गुडविल कितनी लानी है, 1,50,000. ठीक है. Now we are just making the entry. He is coming with the amount of some assets. So he came with stock. I'm just passing the journal entry here. Stock लाया है वो, तो stock account debit. That is of rupees 80,000. Land लाया है 1 लाख रुपए की. Land account debit 1 lakh rupees. और उसके अलावा वो क्या लाया है, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का. तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000. अगर हम इन सबको टोटल करेंगे तो टोटल इज 2,20,000. 60 का तो स्टॉक और 80 का टोटल है, अलग अलग है ना. वन मिस्टेक इज देयर. दिस इज 60 का stock and he also came with the amount of debtors of 80,000. So total if we will total it, that is 2,80,000. 2,80,000 रुपए का सेट लेके आया है टोटल वो, एंड जिसमें से उसको प्रीमियम पे करना है. प्रीमियम फॉर गुडविल कितना देना है उसको, ओनली 1,50,000. टोटल वैल्यू ऑफ असेट इज 280, बट प्रीमियम देना है ओनली 150. So rest of the amount का क्या होगा, that will be counted as their capital. So we will write to Sohan's capital account. To Sohan's capital account 1,30,000 रुपए. So remaining amount of the assets will be contributed toward the assets of the new partner. Contributed toward the capital of the new partner. Fine. अब जो प्रीमियम आई बेटा, that premium will be shared among to whom? टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो में नहीं दे रखा है, तो न्यू रेशियो गिवन नहीं हो तो ओल्ड रेशियो बिकम सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो राम एंड मोहन इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर दिस क्वेश्चन एंड दे विल सैक्रिफाइस देयर शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:5. तो ये जो 1,50,000 रुपए की गुडविल है वो राम और मोहन को मिल जाएगी 3:2 में. तो दैट्स एंट्री वी विल डन. प्रीमियम फॉर goodwill account debit to Ram's capital account and to Mohan's capital account. $150. और अगर हम 150 को 3:2 में बांटेंगे तो 90 and 60. And question is over. Yes, begin. The next question is related to withdrawal of goodwill. मतलब जो भी गुडविल नया पार्टनर लेके आ रहा है प्रीमियम का शेयर, उसमें से कुछ शेयर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं. विड्रॉ करने का मतलब है कि दे आर टेकिंग द मनी फॉर देयर पर्सनल यूज. ठीक है. तो उस केस में क्या करेंगे, द रिमेनिंग पोर्शन तो सेम ही रहेगा, लाने का डिस्ट्रीब्यूट करने का वो सब का प्रोसेस सेम रहेगा. ओनली वन एंट्री विल बी इंक्रीज. एक एंट्री और बढ़ जाएगी. किस चीज के लिए बढ़ जाएगी, फॉर विड्रॉइंग ऑफ द गुडविल. सो वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे. A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admit C as a new partner for 3/7 share. And new profit sharing ratio of the ABC is 2:3.
She brought 2 lakh as capital and 1,50,000 as premium. The share of premium is already given in the question. So we need to calculate the sacrificing ratio and pass the necessary journal entries. ठीक है, देखते हैं आगे. First of all, to distribute this amount of premium, I required sacrificing ratio. और मैं निकाल सकता हूँ sacrificing ratio because मुझे new ratio भी given है और old भी given है. तो मैं निकालता हूँ A sacrifice. That is old minus new, 3 by 5 minus 2 by 7. 35 is this is 11 by 35 and B sacrifice 2 by 5 minus 2 by 7. 35 14 4 by 35. So ratio is 11:4. Sacrificing ratio of year B is 11:4. अब इसके बाद क्या करनी है हमें जर्नल एंट्रीज. सबसे पहली एंट्री जो ये पैसा आया है इसके लिए और एंट्री मेरे पास बैंक से लिख सकते हैं, बड़ी अमाउंट है. बैंक अकाउंट डेबिट टू C's capital account and to premium for goodwill account. टोटल मिला के बुलाएंगे 3,50,000 रुपए. 2 लाख जिसमें से कैपिटल है और 1,50,000 जिसमें प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, और इसके बाद क्या होगी, प्रीमियम को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. वी विल डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम. तो प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. प्रीमियम फॉर goodwill account debit to A's capital account or to B's capital account. प्रीमियम कितनी है बेटा 1,50,000 और किस रेशियो में बढ़ेगी 11:4. तो 11:4 में बांटेंगे तो दिस विल कम 1,10,000 और 40. 1,10,000 और 40,000. अब इसके बाद क्वेश्चन में एक छोटी सी लाइन और बोलिए क्या कि जो भी कैपिटल इनके पास शेयर ऑफ प्रीमियम आया है उसमें से हाफ शेयर पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं. तो विड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, कैश में, और विड्रॉ करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल क्या बढ़ेगी, कम. तो हम एंट्री करेंगे A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और हाफ अमाउंट विड्रॉ किया है इन लोगों ने. तो हाफ 110 मिला था एक को 55 और 20 75. फाइन. तो दिस इज द एंट्री. तो ये ऑप्शनल है ये एंट्री थर्ड वाली. जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में होगी. इन सम क्वेश्चन दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी देयर. अगर है इंफॉर्मेशन तो ये एंट्री करनी है. अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हम ये समझते हैं कि आपकी जो भी प्रीमियम आई है क्वेश्चन में वो रिटेन कर ली गई है फर्म के थ्रू. ठीक है, अगर हम एंट्री नहीं करते तो इट इज रिटेन.